وربك الأكرم الذي علم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear and respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear, I am your host Dr. Jameel Rathore, and you are watching your favorite program Iqra, in which we teach our viewers how to recite Holy Quran with proper pronunciation and accurate accent. So, as usual, that means according to the format of our program, first we shall give you the recitation of holy verses. And our today's program consists of verse number 43 to 45 of Surah Al-Kahf of the 15th chapter of Al-Quran. And as usual, you are requested to listen to these verses respectfully, lovingly, and be silent, so that God's blessings may be achieved. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. صدق الله العظيم. And now we proceed with its word by word recitation, that is by splitting or breaking the verse into words. And you are requested to repeat with me. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ नाज़रीन किराम, यहाँ पर लफ्ज़ तकुन है, लिहाजा तकुन लहू नहीं पढ़ेंगे, बल्कि काफ को बराह रास्त लाम में मिलाएंगे। और ये फार्मूला, ये कायदा, ये तरीक़ा
मैं अक्सर गोश गुजार किया करता हूँ कि जब भी नून साकिन हो, नून पर जो निशान है वो सकून का हो या फिर नून तनवीन हो, तो ऐसी सूरतों में हम अगले हर्फ को देखते हैं, अगर वो यरमलून यानी या वा मीम लाम वाव नून में से कोई हो तो फिर हम नून साकिन और तनवीन को साउंड नहीं करते, उनकी आवाज़ प्रोड्यूस नहीं करते। यहाँ पर तकुन था, नून साकिन था, अगला हर्फ लाम है, यरमलून की फैमिली से है, लिहाजा काफ को बराह रास्त लाम में मुदगम करके मर्ज करके मिलाकर फिर हम पढ़ेंगे और नून की साउंड को हम प्रोड्यूस नहीं किया करते। लिहाजा तकुन लहू नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम इसको पढ़ेंगे तकुल्लहू, तकुल्लहू, वलम तकुल्लहू फिअतुन यंसुरूनहू, फिअतुन यंसुरूनहू मिन दूनिल्लाहि, मिन दूनिल्लाहि वमा कान मुंतसिगा, मुंतसिगा हुनालिकल वलायतु, हुनालिकल वलायतु लिल्लाहिल हक़, लिल्लाहिल हक़। यहाँ पर अल्लाह का नाम है, लेकिन चूंकि अल्लाह के नाम से पहले ज़ेर है इसलिए इसको बारीक करके पढ़ेंगे लिल्लाही, और हक़ अगर वक़्फ़ करेंगे तो ज़ाहिर तशदीद है, दोनों काफ की आवाज़ आनी चाहिए, हक़, और मिलाकर पढ़ेंगे तो लिल्लाहिल हक़्क़ि हुवा खैरुन, खैरुन सवाबन व खैरुन, सवाबन व खैरुन उक़बा, उक़बा। काफ पर कलकला करेंगे क्योंकि काफ हरूफ कलकला में से है, काफ क़ा बा जीम दाल ये हरूफ कलकला कहलाते हैं, लिहाजा यहाँ पर आवाज़ रिपीट होगी, उक़बा, उक़बा। वज़रिब, वज़रिब, देखिए दौद भी साकिन है, बा भी साकिन है, दौद को हम आवाज़ रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि हरूफ कलकला में से नहीं, लेकिन बा चूँकि हरूफ कलकला से है इसलिए आवाज़ दोबारा पलटती हुई महसूस होती है। वज़रिब, वज़रिब लहुम मसलल हयातिद दुनिया, लहुम मसलल हयातिद दुनिया कमाइन, कमाइन अंज़लनाहु, अंज़लनाहु मिनस समाई फ़ख्तलत, फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्ज़ि, नबातुल अर्ज़ि फ़अस्बह, फ़अस्बह हशीमन, हशीमन तज़गूहुर रियाह, तज़गूहुर रियाह वकान अल्लाहु, वकान अल्लाहु अला कुल्ली
شيء مقتدرا. Now we proceed to the third and last segment of our program, in which we are showing these verses written in Arabic calligraphic as well as Romanized or transliterated for those who are unfamiliar with Arabic alphabets as compared to English alphabets. And this exercise is followed by Urdu and English translation. So keep on watching this program and stay with us. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا. In Roman, وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا. In Urdu, और न रही थी उसके पास कोई जमात जो उसकी मदद करती अल्लाह ताला के मुकाबले में, और न वो बदला लेने के काबिल था. In English, and he had no troop of men to help him against Allah, nor could he save himself. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. In Roman, هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. In Urdu, यहाँ से साबित हो गया कि सारा इख्तियार अल्लाह बरहक के लिए है, वही बेहतर सवाब देने वाला है और उसी के हाथ में बेहतर अंजाम है. In this case is protection only from Allah, the True. He is best for reward and best for consequence. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. In Roman, واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما. In Urdu, बयान फरमाइए इनसे दुनियावी जिंदगी की एक और मिसाल. ये पानी की तरह है जिसे हमने उतारा है आसमान से, बस गुंजान होकर उगती हैं इस पानी से जमीन की अंगूरियां यानी नबातात. In English,
and coin for them the similitude of the life of the world as water which we send down from the sky, and the vegetation of the earth mingleth with it. فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. In Roman, فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وكان الله على كل شيء مقتدرا. In उर्दू, फिर कुछ अरसे के बाद वो खुश्क बोसीदा घास हो जाती है, उड़ाए फिरती हैं उसे हवाएं, और अल्लाह ताला हर चीज पर पूरी कुदरत रखने वाला है. In English, and then becometh dry twigs that the winds scatter. Allah is able to do all things. नाज़रीन किराम, इसी के साथ हमारा आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा. इन आयात में हमने जाना कि अल्लाह तबारक व तआला के जो शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह की तौहीद का इकरार करते हैं, अंबिया किराम की रिसालत को मानते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उन पर इनाम व इकराम की बारिशों का नुज़ूल फरमा दिया करता है. लेकिन अगर अल्लाह किसी को नेमतें देता है और वो नशुक्री करे, यानी शिर्क करता है या तकब्बुर करता है, और जो माल दिया गया है उस माल को अपना ज़ाती समझकर, ये समझकर कि हमेशा वो इसी के पास रहेगा, वो गुरबा, यतामा, मसाकीन और अल्लाह के बताए हुए तरीक़ों पर खर्च नहीं करता, तकब्बुर करता है, तो रब्बे ज़ुल जलाल ने यहाँ पर यह तमासील बयान की कि वो शख्स जिसको अल्लाह ने सब कुछ दिया था, सरसब्ज़ो शादाब बाग थे, लहलहाते हुए खेत थे, लेकिन नशुक्री की, अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का इकरार न किया, अल्लाह तबारक व तआला ने उस नाशुक्री की वजह से, कुफरान नेमत की वजह से अपनी नेमतों को उससे छीन लिया, और रब्बे कायनात ने बिल आखिर उसकी उन खेतियों को तबाह बर्बाद कर दिया. तो इससे हमें मालूम हुआ कि दुनिया की जाहो जलाल है, शान व शौकत है, शिको है, बादशाहतें हैं और दुनिया की सदारतें हैं, ये सब आर्जी हैं, किसी वक्त न जाने कब वक्त आ जाए जब ये छिन जाए. लिहाजा हर वक्त अपने रब से डरते रहना चाहिए, उसका कलमा, उसका जिक्र अदा करते रहना चाहिए, और अपनी आजिज़ी व इनकिसारी को बारगाहे उलूहियत में पेश करते रहना चाहिए. यही वो दर्स है जो कुरान की इन आयात में मुख्तलिफ तमासील और एग्जाम्पल्स के ज़रिए हमें बताया जा रहा है. दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मानों में अज्ज़, इनकिसारी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, और जो कुछ अल्लाह ने हमें दिया है, सेहत दी है, माल दिया है, दौलत दी है, और सबसे बढ़कर ये कि ये ज़िंदगी दी है, अल्लाह तबारक व तआला की इनाम व इकराम पर, हर बाहर आने वाले और अंदर आ जाने वाले सांस पर रब्बे ज़ुल जलाल का शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए. आमीन. कल इंशाअल्लाह नए सबक के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे. उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह निगहबान.